जब पावर होता है, एक सोचते हैं कि हम तो पूरा दुनिया को बचेगा, एक सोचते हैं कि हम तो अभी सबको मेरे पावर में डालेगा. आई यूज टू सी थिंग्स एंड बिफोर समथिंग वुड हैपन हमको सपना में आ जाता था. आपको ड्राइवर नंबर या तो लाइफ पाथ नंबर 1 होता है बोलने से आपका पोटेंशियल ये होगा कि आप अच्छा लीडर बन सकेगा. और नंबर 9 आदमी लोग, हम लोग उसको न्यूमरोलॉजी का वॉरियर्स बोलते हैं. बहुत वो होता है कि गिव अप नहीं करते हैं, वो लोग भी ह्यूमैनिटी. किसी को शादी करने वाला है, इफ़ यू वांट टू नो हाउ ही इज, उसको आप सिर्फ 10 डे तो भर निकल के आ जाओ, हम पूरा बता देगा क्या है, कैसे है बोल के ना, उसका पर्सनैलिटी कैसा है. वही करेगा. आई थिंक आई वुड क्रेडिट माई ऑल माई एबिलिटीज टू माई ग्रैंडफादर ना. वो भी धोंदा ही था ना. एंड उसका भी ये सब आता था कि ड्रीम्स वगैरह. तो Black Hole presents Small Talk with Coco Season 2 and welcome to the new episode of Small Talk. And आज के इस एपिसोड में we are going to discuss about numerology, spirituality and occult. And to do that, I have a special guest with me and उसको मैं मिलाऊंगी थोड़ी देर के बाद. And before I start the episode, I want to mention that today we are recording at Ragi Studio and I am wearing this beautiful blazer from Gurnam and my hamper partner is Mulimank and my refreshment partner is Joe's Kitchen. So let's meet our guest. hello everyone, my name is Mete. I'm a spiritual counselor. I'm really looking forward to this podcast. And welcome to Small Talk. Thank you for having me. Okay, before we start the conversation, let's explain. Can you just explain in layman words ki what is occult and what is numerology and what is spirituality, like in very brief. Very simple. Yeah, in simple terms, I would say occult, the term represents the meaning that it's a hidden knowledge. Basically, anything that has a supernatural element, mystical element, all kind of knowledge that is hidden from our like naked eyes, but it exists and it helps us realize our truth. जैसे कि लाइफ में हम लोग का पर्पस क्या है वगैरह वगैरह. एंड दैट इज़ वेयर एक्चुअली न्यूमरोलॉजी कम्स इन. न्यूमरोलॉजी इज़ पार्ट ऑफ ऑकल्ट. ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स है, जैसे कि डिविनेशन एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स, बट डिविनेशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा है. उसमें आता है न्यूमरोलॉजी. एंड न्यूमरोलॉजी में बेसिकली हम लोग क्या मानते हैं कि हर नंबर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है और एक पर्सनालिटी होता है, उसका अपना एनर्जी होता है विच अफेक्ट्स द पर्सन हु बियर्स इट. इसलिए मैं आपको पूछ रहा था कि आपको बर्थडे कब बोल के टू नो लाइक द काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर. और इसके बाद स्पिरिचुअलिटी. आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट something I would define because spirituality is so subjective and so personal. हर आदमी का different truth होता है. So I would say spirituality is basically finding your own truth as to why you're on this planet, क्या के लिए आया हुआ है. And you know, so for example, we were just talking how your editor was into something and then he followed his passion. So eventually some people will take some kind of decision in his life that is somewhere connected to why they are here. It will feel right to them. So I would say that is kind of what I would say spirituality is. It's basically finding your own truth. Okay, so before we go into deep conversation, I want to ask you like a very personal thing. Why you chose this part? Yeah, sure. So growing up, I first of all felt very different, right? And I used to see things and before something would happen, हमको सपना में आ जाता था. And I would not know क्यों हो रहा है ये सब. And there is a term called astral projection, if you know. तो हम astral project छोटा से करता था. And then I thought it was normal up until I reached Budapest. और वहाँ में हम जब पढ़ रहा था, फिर जब मेरा astral projection हुआ, I was just like talking to my boyfriend and I was asking him, तुमको भी ऐसा होता है क्या? And he was just like, what are you talking about? And I was like, तुम लोग अपना आत्मा बदन से नहीं निकालते, नहीं घूमते. तो वो बोले कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता है. एंड देन मेरे भाई को हम बात किए तो भाई जैसे हो गया, दीदी हम आपका मेंटल हेल्थ के लिए डर लग रहा है. एंड आई वाज लाइक देयर इज नो वे आदमी लोग को ये नहीं होता, क्योंकि ग्रोइंग अप वो मेरा हमेशा होता था एंड आई टूक इट एज अ नॉर्मल थिंग. सो आफ्टर दैट माई स्पिरिचुअल जर्नी बिगैन. बट ऑब्वियसली I wanted to take the scientific approach first, which is where I pursued psychology. उसको पढ़ने के बाद you know sometimes प्रोफेसर का भी साथ भी झगड़ा होता था. आप बताओ कैसे करके हम पहले देख लेते हैं कुछ चीज़ होने के पहले. And you know ऐसा टाइप का था कि वो जो not only just saying that ऐसा हो नहीं सकता है, they are not even acknowledging कि ऐसा हो सकता है. और हम लोग यहाँ में तो आदमी लोग हम लोग थोड़ा open minded होते हैं तो like we
we agree somewhere down the line that there are forces beyond our logical understanding. And हम लोग थोड़ा open minded होते, but westerners वो लोग थोड़ा सा ऐसा होते हैं, but they are more open minded to it right now. So ऐसा हो के हम साइकोलॉजी से शुरू किया था, बट देन अगेन धीरे धीरे मेरा दिल जो हमेशा ओकल्ट में था, बट यू नो द फियर ऑफ ऑलरेडी थोड़ा डिफरेंट फील करता था. तो ऐसा फील होता था कि यार पहले से दोस्त कम है, ऐसा हो जाने से फिर दोस्त तो होगा ही नहीं. आदमी लोग सोचेंगे ये पागल है क्या कर रहा है बोल के ना. बट आई जस्ट टुक अ लीप ऑफ फेथ एंड आई वाज लाइक इट्स ओके, जो सोचने तो वैसे भी क्या ही होगा मैक्सिमम ना, इधर वे कुछ तो करेगा तो सोचेगा ये. एंड देन आई पुट माई सेल्फ आउट देयर इन इंस्टाग्राम एंड दैट इज वेयर आई ब्लू अप एंड यू नो नाउ पीपल नो मी एज द occult therapist. So after that I am slowly switching from psychology and traditional counseling to spiritual counseling. And for me personally, psychology did help, but spirituality and occult really resonated with me. And everyone has a different truth, like I said. So someone might be logical and they might completely disagree, but for me this is my truth. So this is how I got into this line. This is where I studied this. Oh, okay. So can you just explain us ki when like someone is like spiritual na, so how it is like it changes the mental well-being of a person. So I would give my example for firstly. So अगर हम जब spirituality में जब हम घुसा है ना, मेरा ऐसा हो रहा था कि I somewhere down the line understood that everything that was happening to me not only had a reason, but all the things that was happening to me was bringing me closer to कैसा बोलेगा ना, अपना पोटेंशियल को फुल्ली बनने के लिए. सो आई वुड से लाइक कुछ भी लाइफ में अगर हो रहा है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ये क्यों हो रहा है वगैरह वगैरह, आई वुड थिंक ओके इफ दिस इज हैपनिंग इन माई लाइफ राइट नाउ, देयर मस्ट बी प्रोबेबली अ रीजन व्हाई इट्स हैपनिंग. अगर आप कुछ बोल दिया अभी और हम ट्रिगर हो गया, सो स्पिरिचुअलिटी हेल्प मी इन अ सेंस कि ट्रिगर होने के बाद आपको हम गाली देने का बदले कि आप क्यों ऐसा बोला है, हमको खराब लगा है, आई वुड गो इनसाइड एंड थिंक कि होगा ये जो भी बोले हम क्यों ट्रिगर हो रहे हैं. सो दैट मीन्स कुछ पार्ट या तो आप बोला हमको थ्रू लगते, या तो कुछ पार्ट हील नहीं हुआ है मेरा, जिसको हमको हील करना चाहिए, इसलिए हमको ये ट्रिगर कर रहा है. सो आई वुड सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन माई सेल्फ इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्टिंग कि क्यों ऐसा बोला है आप. इन द एंड ऑफ द डे जैसे मार्कस ऑरेलियस बोलते हैं ना, वो स्टोइसिज्म अगर आप सुना होगा, वो बोलते हैं कि लाइक कुछ भी आपका इमोशंस वगैरह जब भी होता है ना, कोई आपको ट्रिगर भी करता है, आप गुस्सा भी करते हैं, गाली वाली भी देते हैं, उसमें आप खुद भी उसमें शामिल है वो चीज़ में, समझ रहे. इफ़ यू आर हर्ट, यू आर पार्टिसिपेंट इन दैट हर्ट, कि आप चूज कर सकते हैं कि not to get hurt and stuff like that. I hope I'm making sense. No, you're making इधर उधर words a big sense. वही approach should be different ना. Basically पूरा approach different कर देता है. So in this way, when we take accountability for everything that happens to us, we become a better person, and that is how I think spirituality can help a person's well-being. तो वैसे आपका well-being ठीक होते रहते हैं, because instead of fighting and other people and fighting life कि क्यों ये हो रहा है वगैरह, you just go with the flow and just think, okay, how can I be better out of this? Okay, if we talk about spirituality, और यहाँ पे तो स्पेशली अरुणाचल में अगर हम बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम स्पिरिचुअल, ऐसा बोलते हैं. बट कैन यू डिफाइन एज ए लाइक प्रोफेशनल बोलेगा ना, क्या बोलेगा, लाइक कैन यू डिफाइन एज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक ए स्पिरिचुअल थिंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड अ रिलीजन प्रैक्टिस? Okay, हाँ. स्पिरिचुअलिटी में बाउंड्रीज नहीं है. स्पिरिचुअलिटी में यही करना है बोल के नहीं होता है. जैसे कि मान लो रिलीजन में ऐसा होगा कि आज सुबह को यही करना है, या तो मान लो आपको ये होगा कि संडे में हमेशा चर्च जाना है. स्पिरिचुअलिटी में यू कुड जस्ट बी सिटिंग like even in the bathroom you could just meditate and that will be a spiritual practice for you. आप खुद का रिचुअल्स बना सकते हैं. जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि न्यू मून में रिचुअल करते हैं कि वो लोग कुछ चीज़ स्टार्ट करते हैं, फुल मून में वो लोग कुछ चीज़ रिलीज करते हैं. बीइंग इन ट्यून विथ नेचर वो टाइप का कोई करते हैं, और कोई लोग बेसिकली जस्ट जर्नलिंग करते हैं, दे वुड कॉल इट स्पिरिचुअलिटी, एंड इवन दैट इज ट्रू. हर टाइप का स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट होते हैं. पर्सन whoever says that, it's almost like your spirit, you're following your spirit's knowledge and it's kind of spirituality. So any way you want to follow. So religion wise, it's not that binded. There is no authority you're following. The only authority you're following is your intuition and what you think you should live your life like. So समझ ना डिफरेंस जो ये में रिलीजन में you follow someone tells you what to do. Spirituality में you find out what you need to do.
ऐसा टाइप का है. ओके सो लाइक इफ समवन वांट्स टू फॉलो स्पिरिचुअलिटी में अगर घुसना चाहते हैं बोलते अगर कोई बिगिनर बोलने से वो स्टार्टिंग क्या से कर सकते हैं छोटा छोटा स्टेप व्हाट कुड इट You बी know, this is very funny. Actually, it reminds me of the kung fu wala na. ऐसा बोलते हैं ना, kung fu is in the small things. The art of cooking. When you cook properly, it's kung fu. Or when you sit properly, it's kung fu. It's almost like that spirituality, भी ना. There is no thing that you can start to do spirituality. क्योंकि to be very honest, everyone is on their spiritual path anyways. हम लोग just नाम दे दिया spirituality. Any person who is living with virtues, any person who is living their truth, they are a spiritual person in a way. It's just they don't want to label it. इसलिए भी कभी कभी हम लोग जब बात कर रहे थे आपको हम बोल रहे थे ना कि how do I define myself, like क्योंकि हम definition और leveling ना समझ नहीं आते कैसा बोलेगा इतना ज़्यादा चीज़ करते तो spirituality में I would say like there is no thing that you can just start. There is no initiation like witchcraft or like reiki में हम लोग जब करते हैं ना उसमें थोड़ा वो होता है कि हम लोग को initiation करना पड़ता है हम लोग का reiki master से वो सब ऐसा कुछ नहीं है. You can just be spiritual by thinking that okay I'll small thing I would say meditation spiritual, yeah, meditation would be a thing. And grounding is a big thing. फिर एक चीज़ है आप जैसे बोले ना कभी कभी हम लोग spiritual आदमी लोग थोड़ा वो हो जाते हैं they get carried away कि हम बहुत spiritual है I am you know on the higher realm. वो देयर इज स्पिरिचुअल एगो और हम लोग स्पिरिचुअलिटी उसको सबसे खराब चीज़ मानते हैं. सो अ पर्सन हु इज स्पिरिचुअल दे वोंट से दिस काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली कि जजमेंट नहीं होते वो लोग क्योंकि दे नो कि सब लोग अपना पाथ में जा ही रहा है. इंटरेस्टिंग ओके सो जैसे जब हम लोग ऑकल्ट बोलते हैं जैसे कि बिफोर स्टार्टिंग दिस एपिसोड वी वर डिस्कसिंग ओनली कि इट कम्स विद स्टेरियोटाइपिंग इट कम्स विद लाइक a different notion. So can you just explain us ki in like what is your understanding of it? Okay, firstly occult जैसा मैंने शुरू में बोला ना occult means hidden knowledge that has some kind of mystical or supernatural element, but otherwise जितना तक हम लोग जानते हैं कि कोई भी occult बोलने से डायरेक्ट शैतान सोचते हैं ना occult वो टर्म ही इतना वो है मतलब डायरेक्ट स्टिग्मेटाइज हो गया कि सैतानिक वगैरह वगैरह. बट इफ यू सी हम लोग यहाँ में आदमी लोग कुंडली बनाते हैं स्पेशली इंडिया में आराम से कुंडली वगैरह बन जाते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी है. एंड एस्ट्रोलॉजी तो डिविनेशन का अंदर आता है डिविनेशन जो फिर ऑकल्ट साइंसेस में ही आ जाते हैं. सो देयर इज नॉट लाइक ऑब्वियसली आई नो दैट देयर आर सम काइंड ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस जिसमें आप what you would call like black magic वगैरह भी करते हैं ना. बट देन अगेन अभी चाकू आपको हम दे दिया बोलने से आप उसको सब्जी काटो या आप हमको मराओ चाकू का गलती है ना आपका गलती होगा समझ रहे हैं ना. तो उसमें लाइक यू कांट ब्लेम द नॉलेज व्हेन अ पर्सन यूजेस इन अ बैड वे. तो ओकल को जो वो लोग जो सैतानिज्म वाला करने वाला वो लोग थोड़ा डार्क साइड में भी चला जाते हैं. एंड लाइक एवरीथिंग हैज दैट पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव. इसका नेगेटिव साइड में वो है कि कोई लोग इसको अपना वे में खराब कर देते हैं. जैसे कि आप लोग मूवी लोग में देखा होगा सुपर नेचुरल पावर वाला हीरो लोग होते हैं ना. हीरो लोग के साथ जब पावर होता है एक सोचते हैं कि हम तो पूरा दुनिया को बचेगा एक सोचते हैं कि हम तो अभी सबको मेरे पावर में डालेगा. अभी पावर का तो गलती नहीं आदमी को तो मिल गया उसका कर्मा था होगा जो भी. सो दिस इज अ डिफरेंस इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द पर्सन ना. बट या ओवरऑल बहुत खराब से एक तो रेपुटेशन डाला हुआ है ओकल्ट का कि ये तो सिर्फ भूत होता होगा ऐसा टाइप का. तो उसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस होते हैं लाइक कुड यू जस्ट एक्सप्लेन अस. हां सो ओकल्ट में ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस होता है. उसमें से हम पर्सनली आई थिंक आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट टैरो एंड न्यूमरोलॉजी जो डिविनेशन के अंदर आते हैं. डिविनेशन में आप फ्यूचर के बारे में थोड़ा बता सकते हैं. उसके बाद जैसे कि टैरो में हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम आपका टैरो रीडिंग करें ना इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन energies that you are resonating at the present moment. Okay. So जैसा कि आप हमको पूछिएगा ना कि मान लो आपका ये पार्टनर आपका बारे क्या सोचता है. अभी आप लोग को कुछ भी चल रहा होगा ना तो उसका मुताबिक आंसर रहेगा कि ये आपका बारे में ये सोचते हैं ना. बट मान लो आप चेंज कर लिया कुछ चीज़ तो उसके बाद वो पूरा रीडिंग नेक्स्ट टाइम चेंज हो जाएगा. हाँ तो वो जो ओनली बेस्ड ऑन करंट एनर्जीज है. और उसके बाद न्यूमरोलॉजी इज काइंड ऑफ गिवन क्योंकि आपका नंबर जो दिन में आप बोर्न हुए ना आपका सोल चूज किया उसको आप चेंज नहीं कर सकते. सो इट्स वेरी लाइक आई वुड से इट्स बेटर टू नो व्हाट योर सिग्निफिकेंस आर एज द नंबर गोज. लाइक आपका नंबर क्या क्या है ना उसको जान के रख लो कि क्या क्या होता है ताकि आप थोड़ा सा नेविगेट कर पाएगा क्योंकि दैट इज नॉट समथिंग यू कैन चेंज. सो उसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा आते हैं बट दिस आर द मेन थिंग्स. Okay, so can you just describe the intersection of spirituality and psychology in someone's work? सो मेरा आपको हम जैसा बता चुके हैं ना मेरा तो दोनों को हम इंटीग्रेट करके चलते हैं. मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि स्पिरिचुअलिटी और ओकल्ट साइंसेस में हम बहुत ये देखा था ना कि
हमको दोनों साइड का बहुत एक्सट्रीम लगा था एक पॉइंट में. Mm. साइकोलॉजी बोल रहा था कि हम लोग कब डायरेक्ट इसको मानेगा ही नहीं ना. फिर स्पिरिचुअलिटी में कभी कभी वो लोग ऐसा कर रहा था कि डरा के रख देते, तुम ये नहीं करिए तो तुमको ऐसा होगा, ऐसा पाप लगेगा वगैरह. तो फॉर मी एज अ पर्सन हु follows both discipline, I like to balance practicality and spirituality. Spirituality और practicality को थोड़ा बैलेंस करके, क्योंकि in the end of the day दोनों का गोल सेम है, आदमी का मेंटल वेलबींग को ठीक करना, right? So this is where I integrate both of them, and this is where I think both are similar. Okay, as an occultist, कभी like did you ever get tempted कि हम भी थोड़ा मेरा practice को dark में ले जाए, ऐसा thoughts आते हैं? कभी कभी ऑनेस्टली जब आदमी लोग ना ऐसा कुछ खराब खराब सुनते हैं ना कि वो मर्डर कर ऐसा ला, तो उसमें थोड़ा गुस्सा लगता है. बट हम लोग ये मानते हैं कि लॉ ऑफ थ्री बोलते हैं ना उसको. अगर हम ये नॉलेज होते हुए अगर हम किसी को खराब किया ना, हमको डबल पनिशमेंट मिलेगा. तो हमको वो सब नहीं करना है. और उसके बाद किसको बार बार जन्म देते रहने, माने रीइंकार्नेशन वगैरह, जस्ट बिकॉज आई डिड समथिंग टू समवन, आई वुडंट लाइक दैट. सो हम वो नहीं कर कभी करेगा तो नहीं. ओके, रीइंकार्नेशन का बारे थोड़ा सा बताओ ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है हमको. थोड़ा सा ब्रीफ में, लाइक वो बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बट वास्ट जस्ट टॉपिक है. स्मॉल से बोलने से रीइंकार्नेशन, आई जनरली उतना लंबा टॉपिक है उसमें, बट हमको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ रीइंकार्नेशन का ये लगता है कि सब कुछ आके बैलेंस हो जाता है. एज इन अगर आपको मान लो हम पैसा ले लेना या मैं, और या मैं अगर कोई भी देख रहे पैसा किसी से लेके नहीं दिया, मुझसे दे दो, क्योंकि आपको नेक्स्ट लाइफ में फिर देना पड़ेगा ना, उसके लिए आप जन्म करेगा. इसलिए कभी कभी ना, एक तो केस था हिप्नोथेरेपी में, बहुत इंटरेस्टिंग था. उसमें किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था. उसमें एक बार ऐसा हुआ था कि ये लड़की जो बहुत डिप्रेस हो गया था क्योंकि उसका करोड़ का पैसा चला गया था. तो उसमें वो जो जब एक हिप्नोथेरेपिस्ट के साथ गया एंड शी डिड सम काइंड ऑफ रिग्रेशन, और उसमें पता चला कि वो जो सेम आदमी था उससे वो जो पहले में बहुत ज़्यादा पैसा लिया था, पर वो जो वो लाइफ टाइम में चोरी करके शायद नहीं दिया था होगा, तो ये लाइफ टाइम में उसको बैलेंस करना पड़ा है. तो समझ रहे हैं ना. सो एवरीथिंग बैलेंसेस आउट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिज़ायर, द ऑब्वियस थिंग, अगर कुछ डिज़ायर्स है आपका जो ये लाइफ में फुलफिल नहीं किए, आप कुछ करने मन था आप नहीं किए, आपका दिल बहुत जाने मन था, बट फॉर मनी और एनीथिंग यू डिडंट डू इट, आपका डिज़ायर्स जब तक कंप्लीट नहीं होगा आप जन्म देते रहेगा. तभी बोलते ना, जब मंक लोग जो निर्वाणा लोग के साथ क्लोज क्यों होते हैं, क्योंकि दे हैव नो डिज़ायर. तो अब ये डिज़ायर नहीं होते तो योर एनर्जी कैन गो बैक टू द सोर्स. बट आपको ऐसा टाइप का है कि ऑलमोस्ट मान लो कि हम लोग जो, अगर आप भगवान है ना, आपका अंदर में जितना भी सेल्स है ना, वो जो छोटे छोटे वाला सेल्स लोग, जितना भी मिलियंस लोग है, वो लोग इंडिविजुअल आदमी है. अभी हर आदमी का अपना कुछ होगा रोल्स, है कि नहीं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी हो, वो लोग का अपना, प्लाज्मा लोग का अपना रोल है, पर अपना रोल है ना, वो लोग का अपना निभाना है. उसके तो निभा के बाद में शायद कुछ भी हो सकता है. माइट बी अ बैड एनालॉजी, बट you get the point. So कभी कभी ये भी हम लोग मानते हैं कि the God lives through you. Like every small desire he might have, like you are fulfilling his function by living your own truth, your own passion, your own desire. And one tarot reader said something very nice. I would like to say, she said something like, her name is Gem Goddess, अगर कोई को लोग जानता होगा. वैसे बोला था कि आपका पेशेंस आपको ना मजाक उड़ाने के लिए नहीं है. दे आर देयर बिकॉज ऑफ रीजन, एंड यू आर सपोज टू फॉलो इट. आप पैसा वैसा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर आपका पेशेंट अभी पैसा नहीं दे रहा है बोलने से भी, आप फॉलो करते रहने से एक पॉइंट में आप इतना अच्छा हो जाएगा कि यू विल मेक मनी बाय either teaching someone, but your name will be there कि ये सबसे अच्छा है. So if you want this kind of service, you have to go to this person. That way eventually it does pay off. Initially obviously नहीं होने से भी ना, पैसा wise. ओके, सो रीइंकार्नेशन का बारे हमको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. लाइक हम ऐसा सुना था कि लाइक वी हैव लाइक 7 और 8 लाइफ, ऐसा होते हैं क्या ना? लाइक उसका भी कुछ वो होते हैं, लाइक ऐसा कभी नहीं सुना. लाइक हम सोचते 7 जन्म लेते हैं, लाइक ये हमने सुना. आफ्टर दैट इफ यू डोंट रेक्टिफाई योरसेल्फ ना, तुम्हारा जो भी कर्मा है उसको ठीक नहीं करने से यू विल गो टू हेल. ऐसा पता नहीं रही, ये हेल कॉन्सेप्ट ना हम इतना विश्वास नहीं करते. सो आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट हेल. बट मेरा बिलीफ सिस्टम इसमें बहुत डिफरेंट होगा, बिकॉज आई हैव हेल और हेवन, आई जस्ट थिंक ये आदमी का दिमाग में ज़्यादातर होता है. एंड या the books that I read and the belief that I resonated with, उसमें जो बोला था कि आप मरने के बाद भी आपका कैरेक्टर और पर्सनालिटी लेके जाता है ना, तो उसमें अगर आपको कुछ गिल्ट है
उसको आप थोड़ा लिव आउट करने थोड़ा समय लगता है, या तो आप उसको वापस रेक्टिफाई करने आएगा, या तो कोई वे में आप स्पिरिचुअल में रेक्टिफाई करेगा, या तो हेल्प करेगा बोल के। बट ये बहुत एसोटेरिक है ये टॉपिक, समझ में नहीं आएगा ज़्यादा डीप जाने से, थोड़ा अजीब हो जाएगा। ओके, बाद में कभी दिन और एक एपिसोड करते हैं इसके ऊपर में। ओके, सो अभी हम लोग विल जंप टू न्यूमरोलॉजी, Okay, sure. विच इज समथिंग आई फील इंट्रिग, लाइक हमको पसंद है ये टॉपिक। सो लाइक पहले तो लाइक यू जस्ट सिंपली एक्सप्लेन कि न्यूमरोलॉजी क्या होता है ना, सो कैन यू जस्ट टेल अस कि इसका रोल क्या होता है इंडिविजुअल लाइफ में? इंडिविजुअल लाइफ में हाँ, प्रैक्टिकल रोल्स ना, फॉर एग्जांपल होगा, हम मेरा एग्जांपल दे देगा ना, तो अगर मेरा ड्राइवर, हर किसी का 2 नंबर मेन होते हैं, ड्राइवर नंबर बोल के होते हैं जो दिन आप बोर्न होते हैं, जैसे कि आप बोला था 13 ऑफ समथिंग, राइट, मेरा है 25, तो उसको प्लस करने से 2 और 5 को प्लस करने से 7 आ जाता है, तो मेरा ड्राइवर नंबर 7 हो गया। हाँ, अभी फिर उसको पूरा मेरा पूरा डेट ऑफ बर्थ को प्लस करने से मेरा नंबर जो आता है मास्टर नंबर 11। सो ओवरऑल न्यूमरोलॉजी में हम लोग 1 से लेके 33 तक काउंटिंग करते हैं, और वो लोग का पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि मगर हम लोग ऐसा नहीं होता कि 1 से लेके 22, 23, 24 ऐसा नहीं, बट 1 से लेके 9 और उसके बाद मास्टर नंबर 11, 22 और 33। जैसे कि अभी हम 25 को हम प्लस किए ना, पर जब किसी का प्लस करने से 11, 22 या 33 आता है, हम लोग वापस प्लस नहीं करते उसको, वो मास्टर नंबर बोलते हैं, वो लोग का कुछ अपना एनर्जी होता है। तो अगर आप मान लो 1 का एनी मंथ ऑफ 1 में आप जन्म दिए ना, जैसे कि मान लो आपको बर्थ डेट को पूरा प्लस करने से वो आपका लाइफ पाथ होता है। हाँ, तो आपका ड्राइवर नंबर या तो लाइफ पाथ नंबर 1 होता है, बोलने से आपका पोटेंशियल ये होगा कि आप अच्छा लीडर बन सकेगा, यू नो, लीडरशिप रोल, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। और अगर बोला जन्म में कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा बोल से, नंबर 1 को आप ऐसा सोच सकते हैं, एक आदमी जो लीडरशिप पूरा रोल अच्छा से निभा सकता है। और उसके बाद नंबर 2 को आप ऐसा सोच सकते हैं, डिप्लोमेटिक आदमी, डिप्लोमेटिक आदमी, केयरिंग होगा, नहीं नंबर 2, हाँ, अच्छा, नर्चरिंग होगा। 3 लोग जो ऐसा होता है कि वो लोग बहुत हैप्पी गो लकी, नंबर 3 पीपल लोग के साथ आसपास घूमने मजा भी होता है ना। आई डू सी आपका वो में 13 में 3 भी है ना, सो यू विल हैव दैट एलिमेंट इन यू एज वेल। फिर नंबर 4 का हो गया, नंबर 4 का आदमी लोग जो बहुत स्टेबिलिटी वो लोग को पसंद होता है, सिक्योरिटी ना, वो लोग थोड़ा जिद्दी भी होते हैं। और उसके बाद नंबर 5 लोग का, वो लोग भी थोड़ा ऑलराउंडर होता है, और उसके बाद कम्युनिकेशंस में वो लोग बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद नंबर 6 वो लोग भी नर्चरिंग, केयरिंग, गिविंग, बट नंबर 6 आदमी लोग थोड़ा सुंदर होते हैं कुछ वे में ना। और उसके बाद नंबर 7 आदमी लोग, नंबर 6 ना। उसके बाद नंबर 7 आदमी लोग जो थोड़ा एनालिटिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, पर नंबर 7 जो फिर स्पिरिचुअल नंबर भी है, तो उसमें वो लोग, हम खुद भी देखा है, हम खुद नंबर 7 पर हम अलग नंबर 7 भी देखा है जो स्पिरिचुअल थे, थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं, वो लोग क्या कर रहे हैं तुम लोग ऐसा बोलते हैं। तो 2 वे का हर चीज़ का 2 चीज़ होते हैं। जैसे कि अभी न्यूमरोलॉजी का कोई लोग नंबर 7 का कोई लोग होता है बहुत स्पिरिचुअल, फिर कोई लोग होगा डायरेक्टली लॉजिकल, विश्वास नहीं करेगा, बट इधर हुए नंबर 8 का आदमी लोग भी बहुत चार्मिंग होते हैं, वो लोग बहुत कभी कभी कट थ्रोट होते हैं, अगर कुछ चाहिए तो खतरा से जाएगा ऐसा वाला, वो लोग को दबा नहीं सकेगा। और नंबर 9 आदमी लोग, हम लोग उसको न्यूमरोलॉजी का वॉरियर्स बोलते हैं, बहुत वो होता है कि गिव अप नहीं करते हैं, वो लोग भी ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, मोरल राइट रॉन्ग ऐसा मत करो, वो सब में होता है। फिर मास्टर नंबर 11 जो होता है, वो लोग आदमी लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, वो लोग का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 22 जो वो लोग को मास्टर बिल्डर बोलते हैं, तो इंजीनियरिंग ये सब चीज़ में ना वो लोग बहुत नेचुरल होगा। और उसके बाद मास्टर नंबर 33 जो वो लोग को हम लोग मास्टर टीचर बोलते हैं, वो लोग प्लस करने से फिर बोला जाने में 3 और 3 को प्लस करने से फिर 6 आ जाते हैं, तो 6 का भी थोड़ा वो लोग का एलिमेंट आ जाते हैं कि वो लोग थोड़ा नर्चरिंग होते हैं। बट 33 इज लाइक द मास्टर टीचर, वो लोग अच्छे से टीच कर सके, तो ये ओवरऑल हाँ ऐसा टाइप का है। तो आप जब ये सब कुछ जान जाते हैं, जान जाने से आपको थोड़ा पता चल जाता है कि ओके मेरा पोटेंशियल ये है। बट ये चीज़ हम बताएगा, हम जितना तक मेरा क्लाइंट्स का देखा है ना, नॉट ऑल क्लाइंट्स विल शो द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट नंबर, क्योंकि एक चीज़ हो गया वो लोग का अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करते हैं। हम बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है, वो लोग का नंबर 1 है, दे आर मेंट टू, देयर पोटेंशियल इज, वो लोग को नेचुरली ऐसा नहीं बोलते हैं इसका नेचुरली टैलेंट है, नहीं बोलते हैं, वो नंबर लोग आपको देते हैं, पर आपका ऊपर है, आप इसको करने मानना नहीं है। तो वो बिल्डअप होगा, एनीथिंग पोटेंशियल है, नंबर पोटेंशियल दे देगा, बट आपको चॉइस भी मिलता है कि वो पोटेंशियल आपको ठीक करना है नहीं करना है। पर उसमें क्या हो जाता है, किसी का फॉर एग्जांपल नंबर 1 हो गया, फैमिली मेम्बर से अब्यूसिव था, तो वो तिमिद हो गया, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग द लीडर he becomes like very timid, very shy, but doesn't mean the potential is not there, it is there, just upbringing हो गया। और अलग केसेस में हम upbringing नहीं होने से I saw that it's the horoscope, वो लोग कुंडली में कुछ हो गया, उसका वजह से थोड़ा डिफरेंस होता है। तो दिस इज लाइक
overall the practical use that you can get out of it. ओके सो कभी अरे हम वो भी पूछने लगा था, आप जवाब दे ही दिया, लाइक कभी जो नंबर का स्पेसिफिक कोई होते हैं फिर वो रियलिटी में फिर अलग होते हैं, वो आप बोल ही दिया. ओके सो अगर लाइक डिफ्रेंशिएट करेगा बोलने से न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या वो है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, डिफरेंस? बट लाइक ओवरऑल बोला जाने में हम मेन डिफरेंस ये देखें कि एस्ट्रोलॉजी थोड़ा ज़्यादा प्रिडिक्टिव है कंपेयर टू न्यूमरोलॉजी ना. न्यूमरोलॉजी में हम लोग जैसे कि हम लोग लोशो ग्रिड बोल के बोलते हैं ना, किसी का चार्ट बना से देख सकते हैं, उससे हम लोग ज़्यादा कुछ बता सकते हैं, बट इतना नहीं जितना एस्ट्रोलॉजी आपको बता सकते. जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन कैन आई गेट मैरिड, ये लाइक कौन सा साल में हम लोग मैरिड होगा, उसमें ना एस्ट्रोलॉजी आपको ज़्यादा हेल्प कर सकेगा. न्यूमरोलॉजी में हम सिर्फ बता सकते हैं कि ये साल आपके लिए अच्छा है, बट आई कांट टेल यू कौन सा डे में ऐसे होगा, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा ठीक होगा. और एस्ट्रोलॉजी में आई पर्सनली थिंक न्यूमरोलॉजी ना थोड़ा पर्सनलाइज कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं कंपेयर टू एस्ट्रोलॉजी का. जस्ट मान लो वर्गो हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया वगैरह ना, उसमें क्योंकि हम बहुत देखा कि कैप्रिकॉर्न बोलने से भी कोई लोग डायरेक्ट अलग अलग होते हैं, पर वो लोग हम जब पूछते हैं आप आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तभी वो लोग जब बोलते हैं हम तभी समझते हैं होगा इसका, मान लो एक्वायरियस होने से भी इसका डेट ऑफ बर्थ ये है, तो नंबर जो इफेक्ट कर रहा है तभी मतलब ये सब के लिए बहुत यूजफुल है. तो ये मेन डिफरेंसेस है बोलेगा, बाकी सब तो बहुत ज़्यादा है, बट ओवरऑल ये. ओके रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताओ ना थोड़ा सा, ये क्या बोलते हैं जैसे कभी लाइक नया इंसान जब मिलता है, सो हाउ लाइक यूजुअली आस्क कि आपका आपको बर्थडे कब है? एक्चुअली ना हम जब ना लैंग्वेज पढ़ रहा था ना, वहाँ में हंगेरियन लैंग्वेज, वहाँ में ना हम एक लड़का को पूछा था ना, क्लास में था, उसको हम पूछे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डायरेक्ट ना फर्स्ट जजमेंट आया, आप ये समय विश्वास करते हैं तब का लाना. हम बोला हाँ न्यूमरोलॉजिस्ट है, आपका नंबर बता के देखा, तो हम जब बताए वो जैसा हो गया, तो वो किससे पता चल रहा है. सो इट्स वेरी कूल टू सी इट, यू नो, वन पर्सन गोइंग फ्रॉम लाइक छी आप इसमें विश्वास करते, तो लाइक हाउ डिड यू नो वाला नहीं होता क्या. दैट इज़ वेरी कूल. बट अदरवाइज ये क्या बोलते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस में किस टाइप का एक्सपीरियंस जानना है आपको? बहुत ज़्यादा टाइप का है मेरे लाइक साथ. कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट किसी को लाइक हाँ फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो रहा है, लाइक एवर सिंस उसका नंबर जान गया, लाइफ पार्ट नंबर जान गया, तो देन यू नो द कैरेक्टरिस्टिक ना, थोड़ा ऐसा होता है. हाँ तो बहुत होता है, बहुत दिमाग होता है. चलते रहता होगा, नहीं इतना भी नहीं चलता. कैलकुलेट करते हैं क्या डायरेक्ट जब बर्थ डेट पूछने से, ईयर पूछने नहीं, फिर देखो हम एनर्जी हीलर भी है ना, तो हम मिलने के साथ साथ आदमी लोग को थोड़ा वो लोग का एनर्जी हमको फील हो जाता है, थोड़ा पता चल जाता है कि इसको किस. फिर साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है, हम थोड़ा बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ा है, हम NLP भी पढ़ चुके हैं, तो बॉडी लैंग्वेज से थोड़ा पता चल जाता है कैसा टाइप का होगा, वो तो हो गया ना. फिर ओरल रीडिंग टाइप का वाला भी होता है ना. फिर उसके बाद हो गया न्यूमरोलॉजी में मगर पूछना पड़ता है, हम हर समय नहीं पूछते, बट कभी कभी हम ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है उन आदमी को, आपको देते बैठ के पूछ लेते हैं. क्योंकि वैसा होता है कि ये क्या कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या नंबर होता होगा. क्योंकि मेरे लिए भी हम ना न्यूमरोलॉजी को ऐसा देखते हैं कि ऑन गोइंग प्रोसेस ना, क्योंकि हर आदमी एक ही नंबर लेके भी बहुत डिफरेंट भी हो जाता है. तो वो मेरे लिए नॉलेज को बढ़, क्योंकि हम जितना भी बुक्स पढ़ लो न्यूमरोलॉजी का ऊपर, nothing is better than reading a real person in real example and practically ना. तो हम जब आदमी लोग को पूछते हैं, मैं सोचता नंबर 6 ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तब का इंटरेस्टिंग है. उसके बाद तभी मेरा नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट क्लाइंट आता है, तभी हमको समझ में आता है कि वो लोग को तो हम बोल भी सकते हैं देखो कभी कभी एक्सेप्शन होता है, क्योंकि मेरा न्यूमरोलॉजिस्ट टीचर हमको ये नहीं बताया था ना कि कुछ कुछ चीज़ में ये एक्सेप्शन चीज़ सब वगैरह. दैट आई फाउंड आउट बाय डूइंग द एक्चुअल कंसल्टेशन, एंड आई एम लाइक ये क्यों सिमिलर नहीं हो रहा है. देन आई करते करते वो गलती हो के तभी समझ में ओ मतलब ये सब भी थोड़ा थोड़ा होता है वगैरह ना. इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, बट या बहुत ज़्यादा. कोई कभी ऐसा हुआ है लाइक लिटरली जो जो नंबर का बारे आप जानता है ना, वो एकदम ही ऑपोजिट ऐसा लाइक कुछ. हाँ एक्चुअली सो मेरा इंस्टाग्राम का ना वो जो ऑडियंस जो आधा है इंडिया से 33% है, तो US से 34% है ना. तो मेरा ये ला जो हम गौर किए हैं, जब मेरे इंडियन क्लाइंट्स आते हैं वो लोग का थोड़ा बहुत सिमिलर होते हैं न्यूमरोलॉजी से. आई डोंट नो, आई थिंक इट्स आल्सो कल्चर बेस्ड. जब US लोग का देखते हैं वो लोग का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट देन लेकिन US में हम लोग दो टाइप का न्यूमरोलॉजी होता है ना. वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी मतलब मॉडर्न न्यूमरोलॉजी बोलते हैं जो पाइथागोरन का होता है, और हम लोग चैलियन न्यूमरोलॉजी बोलते हैं जो थोड़ा मिस्टिकल होते हैं. तो मेरा ये एक बार ये जो US का क्लाइंट के साथ हुआ था, उसमें ऐसा टाइप का था कि उसका जो नंबर 5 था, नंबर 5 आर ऑल अबाउट फ्रीडम, यू नो, आउट गोइंग, एक्सट्रोवर्जन, उसका ऑपोजिट था. तो हम ऐसा हो गया कि आप कैसा करके मतलब नहीं होते क्या, कैसा ऐसा हुआ है बोल के. तो हम उसको पूछा आपका अपब्रिंगिंग कैसा था, तभी पता चले वो सबसे बड़ा बेटी था. तो सबसे बड़ा बेटी को वो लग्जरी नहीं मिलते ना, जो भी करेगा बहन को देखना है, भाई को देखना है, तो उसमें पता चल जाता है कि ओ इसका ये केस में इसका अपब्रिंगिंग जो इसको इफेक्ट है, क्योंकि धीरे धीरे उसका ये ड्रीम है कि हमको जस्ट
कहीं जाना है, नहीं पता कि किसी को तारीख निकल के ट्रैवल करना है, तो पता चल रहा था कि एलिमेंट है उसका, पर वो निकल नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इतना समय से छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके, और वो नंबर 4 भी था। नंबर 4 पीपल लोग थोड़ा रिजिड भी होते हैं, वो लोग थोड़ा स्ट्रक्चर्ड बैठना पसंद करते हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। जैसे कि नंबर 5 इज ऑल अबाउट फ्रीडम, नंबर 4 को थोड़ा स्ट्रक्चर बैठना है, वो जो नंबर 4 और नंबर 5 का मिक्स था, लाइफ पाथ 5 और ड्राइवर नंबर 4, तो दोनों जो जब मिक्स हो गया, ऐसा डायरेक्ट ऑपोजिट साइड है ना दोनों, तो इसलिए ऐसा होता है कि लाइफ मेरा पाथ ऐसे है क्या ना, मेरा ड्राइवर नंबर जो 4 है शायद ना, आपका और लाइफ 4 है। पार्ट जो मेरा 1 है क्या? हाँ, आपका 1 है। ये लीडरशिप में आपका बहुत अच्छा होगा, एनीथिंग दैट हैज टू डू विद लीडिंग थिंग्स, बीइंग इन द स्पॉटलाइट। फिर नंबर 4 का थोड़ा स्ट्रक्चर पसंद होता है और थोड़ा जिद्दी भी होता है। हाँ, बहुत जिद्दी हो। वो कॉम्बिनेशन हम है। फिर आप अप्रैल में भी जन्म दिया तो जिद्दीनेस थोड़ा ज्यादा हो सकता है कभी कभी, माई वे और द हाईवे टाइप का ना, हमने करेगा तो नहीं करेगा, मेरा जैसे ही करना है ऐसा टाइप का। ओके, सो अभी लाइफ पार्ट नंबर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो ना, हमको तो पता है वो लाइफ पाथ नंबर बेसिकली ये होता है कि आपका, अगर मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया 25th of August 1994, तो आप पूरा प्लस करेगा 2 + 5 + 8 + 1 + 9 + 9 + 4 ना। उसके बाद पूरा प्लस करने के बाद ये केस में अगर आपका आ जाएगा ना मास्टर नंबर 11, तो 11 को आप और प्लस नहीं करेगा, उसको Okay. जैसा है वैसा रहने देगा, 11, 22 और 33 को ना। बट अपार्ट फ्रॉम द, अगर आपका 27 आ गया, 25 आ गया, उसको आप प्लस करके, तो 2 + 7 हो जाने से आपका हो जाएगा 9 ना, और उसके बाद 2 + 5 करने से आपका हो जाएगा 7। सो वो जो आपका लाइफ पाथ होगा। और लाइफ पाथ जो ना, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लाइफ पाथ जो हमेशा 30 के बाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए आदमी लोग बोलते हैं ना, अरे पहले थोड़ा अलग था, अभी थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि वो लोग का नंबर जो 30 के बाद अलग नंबर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, तो कोई आदमी लोग बहुत पहले ऐसा टाइप का, अगर ड्राइवर नंबर वो लोग का 5 था ना, और लाइफ पाथ नंबर 4 हो गया ना, तो ऐसा होता है कि पहले बहुत चुलबुले ऐसा घूमेगा, धीरे धीरे थोड़ा स्ट्रक्चर नहीं घर में बैठेगा, ऐसा टाइप का हो जाता है। तो ये ट्रांजिशन भी होते हैं। बट लाइफ पाथ नंबर और ड्राइवर नंबर थोड़ा ऑपोजिट होता है बोलने से, थोड़ा आदमी के दिल में कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं थोड़ा। धीरे धीरे जब ट्रांजिशन आएगा, वो लोग ऐसा टाइप का हो सकते हैं कि लाइक हम क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब हम तो ऐसा नहीं था, अरे हमको नया फीलिंग आ रहा है, ये सब टाइप का अलग थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। हाँ सच्ची, आई कैन रिलेट टू दिस अभी। ऐसा हो Okay. तो लाइक लाइफ में जब डिसीजन मेकिंग का समय आता है, लाइक हाउ इम्पोर्टेंट इज लाइक न्यूमरोलॉजी और ये लाइफ पार्ट नंबर हो गया, ड्राइवर नंबर, वो कितना इम्पोर्टेंट है? अगर कभी कंफ्यूजन होता है लाइफ में ना कि क्या लेगा क्या नहीं लेगा, कौन सा रास्ता जाएगा, ऐसा और उसमें रास्ता असली रास्ता तो नहीं, मतलब लाइफ का लाइफ पाथ। पाथ। सो अगर आप न्यूमरोलॉजी को ऐसा देखो ना, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ टूल जो आपको खुद का बारे ज़्यादा बताएगा ना। सो फॉर एग्जांपल मेरा हो गया 7 है ना, हम जो ड्राइवर, और मेरा लाइफ पाथ हो गया 11। 7 जो डायरेक्ट स्पिरिचुअल नंबर है, 11 जो डायरेक्ट इंट्यूटिव नंबर है, और मेरा लोशू ग्रिड में भी ऐसा है कि 7 और 2 का कॉम्बिनेशन, और ये कॉम्बिनेशन होने से नेचुरली आदमी लोग को प्रेडिक्टिव ड्रीम्स आते हैं। तो न्यूमरोलॉजी टोल्ड मी मोर अबाउट इट देन अदर्स डिसिप्लिन्स। तो उसमें हमको समझ में आ गया कि ओ इसलिए, क्योंकि मेरा जब टीचर हमको सिखा रहा था, वो जो देखने का बोले, मेरे तुम इसलिए इतना ये सब चीज़ पसंद है ऐसे टाइप का, क्योंकि मेरा नेचुरली उसमें इंक्लिनेशन था ना। तो मेरा लिए ये ऐसा हेल्प किया क्योंकि हम साइकोलॉजी में बैठने मन था। मेजर रीज़न ये था कि हमको जजमेंट नहीं चाहिए आदमी लोग से, थोड़ा ऐसा, क्योंकि हम जब ना ओकल को हम एक्सेप्ट किया ना, मेरा ओन लव्ड वंस लोग भी ना थोड़ा ऐसा टाइप का, वो लोग थोड़ा बोला है, अरे आई फील पिटी फॉर एन इंटेलेक्चुअल लाइक यू, तुम क्यों ये कर रहे हैं, ऐसा टाइप का। फिर मेरे दोस्त लोग ये बोल रहे थे कि हम तो ओकल चीज़ देखने से थे, हम किसी के साथ आने वाला नहीं। तो डिस्करेज बहुत हुआ था। बट मेरा लिए डिसीजन मेकिंग क्या था, हमको पता है कि मेरा पैशन फॉर ओकल जाएगा ही नहीं। अभी छुप के रहने से बदली, उससे अच्छा वाई शुड आई ट्राई टू प्लीज पीपल to like definite group of people who I don't even belong with in the first place। उसमें इतना एनर्जी जाएगा पीपल प्लीजिंग, ट्राइंग टू फिट इन। उससे अच्छा जैसे है वैसा करके खुद को अगर बाहर डालेगा, और उसके बाद मेरा खुद का, क्योंकि देयर आर पीपल हु आर इनटू दिस, दे विल फाइंड मी एंड देन आई विल बी इन माय ओन सोशल लाइक सोल ट्राइब बोलेगा। तो मेरा लिए ये में हेल्प किया, क्योंकि आई न्यू दैट मेरा नंबर 7 तो स्पिरिचुअली है ही, और नंबर किसी किसी को ज़्यादा इफेक्ट करते, किसी किसी को कम। हमको बहुत इफेक्ट कर रहा था। तो मेरा लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है कि नंबर्स जानने के बाद हमको पता चले कि ओके स्पिरिचुअलिटी इज अ थिंग दैट विल कम नेचुरली टू मी। अभी मान लो अगर आप नेचुरली आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, यू आर नेचुरल टॉकिंग राइट, अभी आपको हम कंप्यूटर साइंस में भेज देगा, तो अभी आपको ये परफेक्ट करने में जितना साल लगेगा, और कंप्यूटर साइंस परफेक्ट करने में जितना साल लगेगा, जो कि आप करने मन नहीं और इंटरेस्ट भी नहीं और आपको पैशन भी नहीं है,
there's a drastic difference because either way दोनों में आपको struggle तो करना ही पड़ेगा. So you might as well choose the thing that you love and struggle at it, right? Because ठीक भी हो जाने से you are following your passion. तो वो में it can help you because it can tell you कि आपका already क्या क्या में पोटेंशियल ज़्यादा है, क्या क्या को आप कौन कौन सा टैलेंट्स को आप होन इन कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी करियर भी बहुत ज़्यादा देख सकते हैं ना, तो क्या क्या होन इन कर सकते हैं वो सब चीज़ आप न्यूमरोलॉजी से बहुत हेल्प ले सकते हैं व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग एंड लाइक लाइफ में क्या पाथ चूज करेगा ऐसा टाइप का वाला. ओके सो ये व्हाट इज दिस यूनिवर्सल मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक नंबर इन न्यूमरोलॉजी? यूनिवर्सल मीनिंग वही था जो आपको हम बताया कि 1 का मीनिंग जो थोड़ा जो लीडरशिप, starting 2 का में, 2 का मीनिंग जो थोड़ा डिप्लोमेसी Okay. ये सब वगैरह. हाँ, तो प्रैक्टिकल इफ यू टॉक अबाउट प्रैक्टिकलिटी लाइफ में, रियल लाइफ में कैसे हम लोग इसको वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? कैसे अप्लाई कर सकते हैं ना. फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको न्यूमरोलॉजी चार्ट बनाए ना, by the way there are things called karmic number and 13 is one of them. So 13 में actually it's interesting that you're interested in reincarnation because 13 का karmic जो वो होता है ना नंबर होता है ना उसमें past life से कुछ भेगे जाया होता है. तो you can edit this out if you don't want to let people know, but so basically अगर ये प्रैक्टिकल नॉलेज बोलने से उसमें ना आपको पता चल जाएगा कि ये कार्मिक का नंबर का वजह से आपका लाइफ में और क्या क्या कुछ एक्स्ट्रा अगर इशू हो सकता है ये सब होगा ना. और प्रैक्टिकली आप करियर वाइज जान सकते हैं कि क्या करियर आपके लिए अच्छा होगा, आपका कौन सा क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़ होते हैं ना उसमें. एक थोड़ा ना जब आपको पता चल जाता है कि ये नंबर जो आपको कुछ अच्छा चीज़ दे रहे हैं ना, और दूसरा बार पता चल जाता है कि ये नंबर से कुछ खराब खराब चीज़ भी मिल रहा है. हर नंबर का अच्छा और खराब होता है, ये नहीं यांग ना, हर सब कुछ का बैलेंस होना पड़ता है. तो उसमें आपको जब पता चल जाता है समटाइम्स यू नो दैट फीलिंग कि ओ माय गॉड इट्स नॉट माय फॉल्ट वाला, इट्स वेरी वेरी थेराप्यूटिक. क्योंकि मेरा ना हम जब नंबर 7 दे आर वेरी डीप थिंकर्स, वेरी एनालिटिक, मगर इतना डीप थिंकिंग कर लेते कि इसका प्रोज एंड कौन सी है, इसका प्रोज एंड कौन निकालते चक्कर में बाद में डिसीजन ले सकते हैं. तो ऐसा टाइप का बहुत होता है ना उसमें. जैसे कि हमको अगर पता चल जाएगा नंबर 7 लोग यूजुअली ओवर थिंकिंग होते हैं, तो उसमें से आया मतलब मेरा गलती नहीं है वाला फीलिंग ना. तो ये वाला फीलिंग मेजोरिटी ऑफ क्लाइंट्स लोग को आता है कि ओ माय गॉड तो मतलब मेरा गलती नहीं है ऐसा वाला, क्योंकि देयर आर या अपब्रिंगिंग मैटर्स कि आदमी कैसा होता है ना, देयर मेंटालिटी आल्सो मैटर्स बट द नंबर्स आल्सो अफेक्ट यू. इसलिए हम कभी कभी मजाक से बोलते हैं ब्लेम योर नंबर्स. ओके अभी मेरे लिए थेरेप्यूटिक हो रहे हैं, क्योंकि अगर मेरा पास्ट लाइफ का बैगेज है बोलने से, लाइक आई समटाइम्स लाइक कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि आई रियली वंडर कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है. अभी थोड़ा लग रहा है ओके आई शुड ब्लेम माई नंबर. नंबर 4 जो ना थोड़ा स्ट्रगल का भी नंबर है एक्चुअली, और आपका 4 ऑलरेडी है ना, और लोशो ग्रुप में तो 4 आपका 9 तो होगा, 2 नहीं है होगा, तो उसमें नंबर 4 जो ना स्ट्रगल का नंबर होता है, तो इसलिए आपका लाइफ में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए भी हो सकते हैं, वो भी डबल हो गया. तो दैट जो आपको जो फील होता है ना कि मेरे लाइफ में क्यों होता है, वो यूजुअली नंबर 4 और नंबर 8 ना हम लोग हमेशा बोलते थोड़ा अवॉइड करो बोल के. ओके तो वो नंबर हो गया आपका, इसलिए थोड़ा स्ट्रगल होता है उसमें. पर उसके लिए रेमेडीज भी होते हैं एंड दैट इज ऑल्सो द प्रैक्टिकल अप्रोच कि वो हमें रेमेडीज में जैसे कि फंक्शन होता है ना कि रूम में कहाँ में क्या लगाना है, कौन सा डायरेक्शन में, इट हेल्प्स. एंड देन वेयरिंग सम काइंड ऑफ क्रिस्टल्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हम सिल्वर वगैरह पहन रहे, देयर इज लाइक मीनिंग टू एवरीथिंग दैट आई एम वेयरिंग. सो ये एक हो गया. और उसके बाद compatibility with partners, that's a big thing. आप किसी को शादी करने वाला है, इफ़ यू वांट टू नो हाउ ही इज, उसको आप सिर्फ 10 डेट ऑफ बर्थ निकल के आ जाओ, हम पूरा बता देगा क्या है कैसे है बोल के ना, उसका पर्सनैलिटी कैसा. हम वही करेगा. उसमें ना न्यूमरोलॉजी में ऐसा होता है कि सोल अर्ज होता है ना, सोल अर्ज ऐसा होता है कि बाकी सब लोग को पता नहीं होगा, सिर्फ वो आदमी का ही होता है. तो सोल अर्ज इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम पर्सनैलिटी नंबर जो होते हैं फर्स्ट इंप्रेशन, और आदमी लोग देख के कैसा लगता है आपको ना. और उसके बाद हो गया डेस्टिनी नंबर वगैरह, पर सोल अर्ज इज समथिंग वेरी इंटीमेट टू देम. वो सब पूरा पता कर सकते हैं, वो नाम से पता करते पर ना, डेस्टिनी नंबर, सोल अर्ज नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, वो नाम से पता करते हैं, वो लाइफ पता है. एंड कुछ नंबर किसी का लाइफ में मिसिंग होते हैं ना, उसका ऊपर कैसे काम कर सकते हैं? हाँ, जो नंबर मिसिंग होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा में ना नंबर 6 और नंबर 3 मिसिंग था ना, तो उसमें नंबर 3 मिसिंग होने से कभी कभी एजुकेशन में बहुत इशू होता है, और कुछ हो गया. पर नंबर 3 इज ऑल्सो नंबर ऑफ ग्रोथ. बिजनेस कर रहा है ना, नंबर 3 मिसिंग होने से ग्रो नहीं हो रहा है, स्टेगनेंट बैठ रहा है. जैसे कि उस दिन पे मैं मेरे भैया का ही दोस्त का कर रहा था, उसमें उसका नंबर 3, 8 और 6 मिसिंग था, और नहीं 3, 8 और
कौन एक नंबर मिसिंग था बोल के, बट 3 और 8 ना वो ज़रूरी होता है। क्यों बोलने से 3 जो ग्रो करने के लिए और 6 जो मनी नंबर है ना, बट ऐसा नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा आदमी लोग धनी हो जाते फिर ख़त्म भी हो जाते हैं ना। नंबर 8 इज़ द मनी नंबर जिसमें आपका जनरेशनल वेल्थ आप गैदर कर सकते हैं। जैसे कि 6 से आपका पैसा आ जाएगा, नंबर 8 आपको क्यों ज़रूरी है बोलने से नंबर 8 से पैसा बैठेगा, जनरेशन वेल्थ टाइप का। इसलिए आप देखो चाइनीज आदमी लोग नंबर 8 बहुत पसंद करते हैं, पर हम लोग इंडियन लोग नहीं बोलते क्योंकि नंबर 8 में फिर हार्डवर्क भी आता है। फिर चाइनीज आदमी को तो हार्डवर्क से प्रॉब्लम नहीं, वो लोग कर लेगा, हम लोग थोड़ा नहीं चाहिए। ओके। अगर हम लोग अरुणाचल में बोलने से, जैसे कि ये न्यूमरोलॉजी हो गया, ऑकल्ट हो गया, इट्स वेरी न्यू थिंग ना, तो इसमें हम लोग बोलने से थोड़ा तो बैकवर्ड है। सो इसमें अगर इफ समवन वांट्स टू नो अबाउट इट और वांट्स टू लाइक प्रैक्टिस या फिर कुछ नॉलेज गेन करना चाहता है हमसे, उसका अप्रोच कैसा होना चाहिए, लाइक हाउ कैन ही अप्रोच? या और फर्स्ट ऑल्सो टेल अस अबाउट योर पेज ऑल्सो ना, कि हाउ टू गेट यू लाइक डीएम्स करने ना, क्या करना है फॉर योर सर्विस एंड एवरीथिंग, ओके। वो भी बोल सकते हैं। क्योंकि आई थिंक बाय नाउ अगर इतना लंबा तक कोई ये एपिसोड देखा है तो उसको तो एक वो हो गया, ट्रस्ट बिल्ड हो गया होगा आपको लेके। सो यू कैन नाउ जस्ट टेल देम कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्या होगा। Wait, you had a question before that. Yeah. वो क्या था, हम भूल गए वो थोड़ा। वही था कि अगर अभी जैसे कि अगर हम लोग ये न्यूमरोलॉजी ये सब टॉपिक के बारे में बात ओ, करेगा, कहाँ? स्पेशली अरुणाचल में बोलने से, तो बैकवर्ड तो हम लोग पीछे ही है अभी बोलने से, एंड फ्यू पीपल आर इंटरेस्टेड, लाइक हम तो थोड़े इंटरेस्टेड थे, थोड़ा हम पूछते हैं आदमी लोग को। सो तो उन लोग कैसे वो कर सकते हैं, अपना कैसे अप्रोच कर सकते हैं इसको लेके, एंड ऑल्सो लाइक आपका हेल्प चाहिए बोलने से, हाउ कैन दे रीच आउट टू यू? So firstly, I would say, you know, it's good to be a bit skeptical because I started like that. हम बहुत जज करता था, ये क्या है बोल के, अभी खुद ही कर रहे हैं ना। So being skeptical is a good thing, but आप पहले रिसर्च कर लो कि आपको क्या सीखने मन है, क्योंकि ओकल में इतना ज़्यादा चीज़ है ना, एस्ट्रोलॉजी सीखने में, रून सीखने में, आई चिंग हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, बहुत ज़्यादा चीज़ है। पहले आपको अगर जेन्युइनली अगर इसको परस्यू करना है बोल से, विच आई रियली थिंक इज़ अ गुड ऑप्शन, बिकॉज नॉट ओनली इट गिव्स यू योर knowledge about yourself, but I think this occult industry is booming. धीरे धीरे you know, हम लोग बोलते हैं ना AI टेक ओवर करने वाला है, but occult industry में ना आप जितना जा सके आप AI से पूछ लेगा, but जो आदमी आपको जो एलिमेंट दे सकेगा ना, देखो पर मेरा क्लाइंट का मुताबिक हम ये भी देखा, आप ये भी करो, वो एक AI आपको नहीं दे पाएगा ना। तो ऑनलाइन ये सब पढ़ के थोड़ा देख लो आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है ना, और अगर पढ़ने मन होता है बोलने से, आई एम टीचिंग टैरो एंड न्यूमरोलॉजी, तो आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद when it comes to consultation, हम ये चीज़ हंसी लगता है, हम इतना तकलीफ से वेबसाइट बना के रखा है, हमको वेबसाइट में कोई भी रीच आउट नहीं करता, सब डीएम करते, डीएम भरती होगी, हम किसको रेस्पॉन्ड करेगा, सब भरती होगी वेबसाइट। इतना तकलीफ से हमें पूरा एरो भी डाल के रख दिया ना कि कौन बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन ये बोल कोई नहीं दिखता। और उसके बाद मेरा ऐसा हो गया कि जैसा बोला है ना, मेरा बेस इधर उधर हो गया, तो इंडिया में 33%, यूएस जो 33%, उसके बाद आधा जो कनाडा, न्यूजीलैंड, और इसके बाद यूके, और समझ ऐसा था कहाँ से वहाँ में पहुँचे हम, जैसे तक कल नहीं होती क्या, कहाँ से वहाँ में पहुँचे हल्के। तो उसमें ऐसा हो जाता है कि क्योंकि हम लोग तो जानते हैं ना, हम लोग का इंडिया का इकोनॉमी तो इतना वो नहीं है ना, हम जितना वहाँ में चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का वहाँ का इकोनॉमी अलग है। वहाँ में हम 5,000 जो कर सकेगा, वहाँ में हम डायरेक्ट नहीं कर सकेगा, तो पर हम इतना चार्ज नहीं कर सकेंगे हमें ना, तो हम उसके लिए भी इंडियन क्लाइंट्स के लिए अलग से ना पूरा बना के रखना पड़े ना, उसके लिए भी यूएस क्लाइंट के लिए अलग से, और उसके बाद हम लोग का हंगरी का भी क्लाइंट्स लोग जो अलग से होते हैं, तो वो लोग का फिर हम लोग का प्राइसिंग थोड़ा मिडिल में होते हैं, तो वो सब के लिए हम जो पूरा इतना दिमाग लगाया कि कोई भी वेबसाइट में नहीं जा रहा है। सो प्लीज़ गो टू माय वेबसाइट, वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट वहाँ पे जाओ, आपको जो पढ़ना है वहाँ से डायरेक्ट वो कर सकते हो। हमें एक कॉन्टेक्ट फॉर्म भी है, अगर कुछ कन्फ्यूजन होता है बोल से, वहाँ में आप हमको पूछ भी सकते हैं कि ये सब कैसा है बोल के ना, कैसा कर सकते हैं, इसको क्या करना है। हमको कभी कभी वो लोग होता है कि वहाँ में हम FAQs भी डाला हुआ है, वेबसाइट में सब कुछ है, FAQs भी डाला हुआ है कि टैरो रीडिंग में क्या होता है, न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, ये सब वगैरह आप हमें पूरा रीडिंग भी कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो गेट टू नो अबाउट मी कि मेरा जर्नी कैसे शुरू है, क्योंकि इट ऑल स्टार्टेड, आई थिंक आई वुड क्रेडिट माई ऑल माई एबिलिटीज टू माई ग्रैंडफादर ना, वो भी दोनदा ही था ना, एंड उसका भी ये सब आता था कि ड्रीम्स वगैरह, तो आई थिंक इट पास्ड ऑन जनरेशन वाइज ना। तो हम ये होगा जो फैमिली में जो भूत देख के नहीं डरता होगा ना, इसको एक्सेप्ट भी कर लिया टाइप का वाला। तो कोई भी कुछ होता है मैं तो क्या करेगा बोल के मुझे से, हाँ जी चिंता मत करो, ये कर लो वो कर लो बोल के। सो लाइक डू यू थिंक जो हम लोग का जो ट्राइबल जो हम लोग का कल्चर है, जो हम लोग नेचर से थोड़ा कनेक्टेड है, सो वी कैन बी लाइक गुड
occultist. Yeah, No? I definitely think that Yeah. क्योंकि हम लोग इतना कनेक्टेड है ना नेचर से, क्योंकि अर्बनाइज जितना अर्बनाइजेशन हो जाएगा ना, इसलिए हमको लगता है ना, हम जब ऐसा देखा ना, पहले मैं ऑकल्टिस्ट लोग को इंडिया में स्पेशली आजकल पता नहीं हम लोग क्यों ऐसा हो गया, हम लोग का कहीं ना कहीं पर मिस्टेक ऐसा होगा, ओरिजिन इज डिबेटेबल, सब लोग बोलते हैं यहाँ से हुआ है यहाँ से हुआ है, पर देर इज नो डिनाइंग कि इंडिया प्लेड ए ह्यूज रोल ना इन ऑकल्ट ना, एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। हम हम पढ़ा यहाँ पर इतना तकलीफ है, हम फिर से रिवीजन करके और एक बार पढ़ने जा रहे हैं ना, बट हमको इंडियन ही नॉलेज चाहिए, क्योंकि आई एम सो प्राउड ऑफ हम लोग का जो नॉलेज है ना, पर इट मेक्स मी सैड कि हम लोग का आदमी लोग इसको नीचे देखते हैं, जबकि बाहर का आदमी लोग जो इंडिया से बोलने से ना, वो लोग ऐसा हो जाते हैं कि वो इंडियन नॉलेज वो लोग बराबर मानते हैं, लाइक योगा वगैरह करके, हम लोग तो कहा सूर्य नमस्कार कर करके हम लोग वो हो गया, तो मतलब कुछ भी नहीं है तो कोई भी कर सकते हैं। बाहर में ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये सब चीज़ को, एंड आई थिंक वी एज अरुणाचली पीपल यहाँ में ना, हम लोग का यहाँ में आई जेन्युइनली बिलीव हम लोग का नेचुरली थोड़ा एम्पैथेटिक कुछ वैल्यू होता है, हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ भी लेते हैं आदमी लोग को ना, तो आई थिंक वी वुड मेक वेरी वेरी गुड ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स, जैसे कि थेरो हो गया, वो हो गया। यहाँ में मेरा एक स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट भी इतना जल्दी पकड़ा ना, शी आई वॉज सो प्राउड ऑफ हर, इतना जल्दी तेरो पकड़ा, और शी जस्ट डज रीडिंग इन जस्ट 1 month। 1 month में उसको हम पूरा पढ़ा लिया, उसके 1 month पे वो जितना रीडिंग किया ना, हम भी ऐसा हो गया, हम बहुत प्राउड लगा, ओह मेरा स्टूडेंट बोल के बहुत खुशी लगा कि इतना अच्छे से कर रहा है बोल के, हम और उसके इतना मोरम से वो हमको उसका फर्स्ट सैलरी जो हमको दिया ना, आया दिल इतना दर्द दिया ना मुझे, क्यों ऐसा किया बोल के, पर पूरा रोने मन में, पर पता चलता है कि वो भी अप्रिशिएट किया होगा कुछ चीज़, इसलिए फर्स्ट सैलरी दिया बोल के। या डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर किसी को भी थोड़ा शर्म है कि इसमें थोड़ा जजमेंट होगा, जजमेंट इधर भी आपको मिलने वाला है, और अगर आप फिट इन करने के लिए कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, हम कितना 20 एटलीस्ट 25 ईयर्स तो हम फिट इन करने किए, पीपल प्लीजिंग ट्राई किए, उसके बाद भी लोन नहीं होता तो दोस्त नहीं होता तो चोरी तो तब तो अपना लाइक लीव योर ट्रूथ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमको अरुणाचल से ना कोई 1-2 लड़के हमको रीच आउट किया था, मैम हम पता नहीं क्या करना है, मेरा फैमिली विश्वास नहीं करते हैं ऐसा टाइप का ला, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल्सो गेव मी दिस प्लेटफॉर्म, एंड आई होप आई रीच द राइट पीपल टू डू दिस रिगार्डलेस ऑफ द जजमेंट। कुछ जजमेंट आ रहे हैं, हमको बोल रहे हम गाली दे देंगे, मजाक किया जरूरी नहीं वो लोग आदमी लोग को सुनने का, बट जब नया नया होते हैं उनको डर लगता है, तो ना आदमी क्या बोलेगा। एक्सप्लेन कैसा करेगा मेन चीज अपना फैमिली को, लाइक हाउ डिड यू एक्सप्लेन हम इन जो योर केस? करते ही नहीं आजकल, पापा को बोलने से, पापा जो अरे भूत देखने वो जो ऐसे टाइप का वाला, पापा जो नूनू तुम ऐसा कुछ करता था ना, उसको करो तो ऐसा वाला, और उसके बाद तुम जो ये मगर मेरा भैया भी है ना, ये लोग बहुत स्केप्टिकल था, अभी हम जितना बात कर रहे हैं उसका दोस्त लोग को बात करते करते वो लोग अरे सही है, एक चीज़ गौर के अपना आदमी लोग ना इतना एक्सेप्टेंस नहीं देने से ना, बाहर का आदमी आपको एक्सेप्ट किया ना, अपना आदमी लोग अचानक से दिस इज आवर पीपल, ये चीज गौर के इंडिया में भी बहुत होता है ना, बाहर में कुछ नाम कहा है बोले से वो लोग जो ये इंडिया का है अभी बोलते हैं ना, ऐसा टाइप का नहीं होता क्या, तो पहले जो हम लोग बोल रहा था तभी तो आप इंटरेस्ट नहीं आया, जब बाहर का आदमी एक्सेप्ट किया तभी फैमिली में भी तो ऐसा था, शुरू में वो लोग ऊपर से हम छोटा एक वैलिडेशन चाहिए होता है वो लोगों को। हाँ वो भी है, ये राइट बोले आप ना, तो हम सबसे चौथा बेटी है ना, तो भैया लोग ऐसा था कुछ कर रहे हैं करने तो ऐसा लगा, तो हम जितना मुख खोलते गए ना, वो का दोस्त लोग को बताते गए, भैया जो इंटरेस्ट हो गया, आजकल हमको रिसेंटली पूछे नूनू मेरे लिए, मेरे पेटने में तो वो जो मेरे लिए ब्लैक गाड़ी ठीक होगा ना, कुछ हंस रहे वो जो ब्लैक गाड़ी ठीक होगा ना, रेड ठीक है ना बोलते, तो उस दिन उसका दोस्त भी आए, दोस्त लोग का बच्चा लोग का भी बता दिया, तो वो लोग जो पूरा आएगी तो पूरा रेजोनेट हो रहे, वो बच्चा अभी से ऐसा है बोल के ना, तो हम लोग बोले कि इसको आप ऐसे ऐसे करके मिटिगेट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ पता चलते हैं ना, नंबर 9 जैसे लोग का थोड़ा मैनिपुलेटिव होते हैं, तो हम बोले आपका बच्चा थोड़ा मैनिपुलेट हो जाए, अय्या ये तो अभी से इतना मैनिपुलेटिव, हमको ऐसा मैनिपुलेट करता है चिप्स के लिए वगैरह ना, हम बोले इसको थोड़ा देख लो, बाद में बड़ा होके और दिमाग चलाएगा वाला ना, उसका वो जोकर चीज़ बताए थे, जैसे कि मम्मी हमको ना आज हम बहुत अच्छे से खाए, बस चिप्स खाने से ठीक हो जाएगा, ऐसा टाइप का ला, तो मम्मी को ऐसे बात करने का, तो चौथा से जब ये सब जान जाते हैं, चाइल्ड न्यूमरोलॉजी वगैरह भी ना अच्छा होता है, क्योंकि बच्चा लोग जब इंटरेस्ट दिखाते हैं कुछ चीज़ में, इट्स बेटर टू लाइक पुश देम इन दैट डायरेक्शन, इवन इट प्रोफेशनल वाइज भी नहीं होता है बोलने से, एटलीस्ट हॉबी वाइज करने दो ना, क्योंकि देर इज नो वे अ टैलेंट इज अ वेस्ट। अगर आप कुछ चीज़ में टैलेंटेड हो गया, कोई तो इंटरेस्ट होगा, वो आपको बोलेगा हमको सिखा दो प्लीज, और अगर आप वो टैलेंट को परस्यू करते रहते हैं उनसे, व्हेन यू आर द पर्सन हु इज मास्टर्ड इट, देयर इज नो वे आपका नाम नहीं जाएगा, और नाम जाता है उनसे इधर उधर, या तो आप कंटेंट बना लो, या तो आपको कोई सीखने के लिए आ जाएगा, या तो आप उससे कमाई लेगा, तो लाइक इन द एंड ऑफ द डे, बट ऑब्वियसली इट शुड ऑल्सो बी रियलिस्टिक ना, जैसा कि वो भी एक मैटर है,
एंड डू यू थिंक या में अगर ये प्रोफेशन अगर आप परस्यू करते हैं बोलने से थोड़ा सा हम लोग का आदमी लोग ऐसे नहीं होते क्या, फ्री का सर्विस लेने में बहुत ये लोग बिलीव करते हैं ना, लाइक थोड़ा बता दो ना, थोड़ा ऐसा लगा दे दो नो कि ये एक प्रोफेशन है, लाइक तो अगर आप ऐसा कुछ अप्रोच कर रहे हैं तो प्रोफेशनली अप्रोच करना चाहिए, तो ये प्रैक्टिस लगता है आएगा यहाँ पे। ये चीज़ तो बहुत हो सकता है हम लोग का आदमी लोग, क्योंकि हम लोग का इकोनॉमिक चीज़ है तो ना, इकोनॉमी का वजह से भी थोड़ा पैसा कम करो ऐसा भी हो सकता है। पर फॉर एग्जांपल हम क्यों ज़्यादा हाई, हम ज़्यादा लोअर नहीं जा सकते बोल से, हम बहुत इन्वेस्ट किए मेरे नॉलेज में ना, हम जितना पैसा आता है वो फिर नॉलेज में ही चला जाते हैं। और हम जब मतलब ऐसा, मेरा भी ऐसा टाइप का नॉन एंडिंग, हम जितना जानते हैं हमको उतना जानने मन होता है, क्योंकि ऐसा फीलिंग हो जाता है कि नया इन्फॉर्मेशन जानने से और नया क्लाइंट ऐसा होने से फिर ऐसा हो जाता है, अरे जो हम पढ़ा था काफ़ी नहीं था, हमको और पढ़ना है और पढ़ना है। तो हम लोग जो नॉलेज में डालते हैं फिर जो जो हम लोग basically whatever we put into ourselves, it's for the betterment better performance for our clients in the end of the day ना। हम अगर मेरा उसमें अच्छा नॉलेज डालेगा तो हम आपको बेस्ट वो दे सकेगा। और जिसके आपका हम न्यूमरोलॉजी चार्ट बना दिया ना, उसमें ये आप श्योर से हो सकते हैं कि आपको फिर और चार्ट नहीं चाहिए होगा। इट्स नॉट लाइक थेरेपी कि आपको आते रहना पड़ेगा, एक बार हो गया क्लैरिटी मिल गया खत्म, उसमें आपको हम सब कुछ भी बता सकते हैं। इट टेक्स लाइक 10 to 15 पेजेस 16 पेजेस डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड वगैरह। पर किसी को अगर पूरा बनाने बोलने से पूरा उतना होता है ना, उसमें आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाता है। तो उसके लिए लाइक इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इट फॉर फ्री ना। पहले बात तो टाइम इन्वेस्ट किए पढ़ने वढ़ने में, पैसा किए पढ़ने वढ़ने में, रिसोर्सेज जाते रिसर्च वगैरह में, और उसके बाद सेकेंड हो गया अगर आप काम कर दे रहे उसमें इतना जाते हैं ना, या छोटा मोटा चीज़ कोई हमको जब पूछते हैं उनसे हम बता देते हैं वो छोटा मोटा चीज़। बट जैसे कि मेरे स्टूडेंट लोग को भी हम जो बोलते हैं ना, शुरू शुरू में थोड़ा फ्री में कर दो, उसमें प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप भी थोड़ा ट्रस्ट confident- बिल्ड करने के हाँ लिए ना। ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस भी होगा। मेरा तो 13 तो हम कितना 8 साल समय से हम फ्री में कर रहे थे, क्योंकि चुपके कर रहा था ना, आदमी लोग क्या बोलेगा। और सेकेंडली ऐसा टाइप का था कि पैसा पैसा को लेके हम लोग एक नहीं होते कि कैसा मांगेगा, मनी का मनी माइंडसेट बहुत गंदा था मेरा ना। मतलब नहीं कैसा मांगेगा, शर्म लगता है मांगने, कैसा करेगा, ऐसा टाइप का नहीं होते क्या। हमको तो मेरा मेंटर इतना गाली देना, मतलब तुम अगर पैसा खुद में ये पैसा नहीं मांगे तुम कहाँ से फिर ग्रो भी होगा ना, क्योंकि तुमको अगर अच्छा और रिसोर्सेस लेना पड़ेगा। हाँ रिसोर्सेज चाहिए, और ऊपर से हम कंटेंट क्रिएट करके हम फ्री नॉलेज देते हैं ना जितना हो सके। वो माइक वाइक का पैसा, वो जो जो एडिटिंग का पैसा, और अभी हम बताए थे पूरा एडिटिंग वगैरह हम खुद करते हैं। तो अगर हम थोड़ा लोड ऑफ करना, किसी को हायर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इवेंचुअली हमको तो निकालना ही पड़ेगा ना पैसा कैसे, क्योंकि आई एम काइंड ऑफ गेटिंग ड्रेन्ड। जैसे आप भी रिलेट कर पाते हैं ना कि कभी कभी नहीं बना सकते ना। अभी घर में आ गया हम इतना दिन के बाद, घर में कुछ भी नहीं करके बैठने मन होते, बच्चा का साथ ना, नया बच्चा भी हुआ है भैया का, तो वो समय नहीं कर सकते क्योंकि कंटेंट बनाने वाला। तो कहीं कहीं ये मोमेंट लोग भी प्रेशियस है, पर हम कुछ नॉलेज आउट देयर फ्री में देने के लिए कर रहे हैं। तो सो आई शुड गेट सम काइंड ऑफ reciprocation in the means of money, or in the means of any way. But in this case, if I'm giving you a service or something, I will charge for it, right? But छोटा बहुत चीज it's okay, बता सकते हैं। ओके, सो आई थिंक we'll covered everything जो हम लोग प्लान किया था। सो डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा टू से, जो भी मेरा व्यूवर्स है? अगर इसको कोई भी देख रहा है और आपको ओकल्ट में इंटरेस्टेड है या तो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड है, और अगर आपको परस्यू करने मन है बोलने से, आई वुड डेफिनेटली आस्क यू टू परस्यू इट। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको उसको डायरेक्टली मतलब प्रोफेशन जैसा करने मन नहीं होगा, एंड देयर इज़ ऑल्सो फाइन। बट ओवरऑल आई रियली थिंक, अगर हम भी कभी कभी सोचने से ना, अगर हम पहले ही शुरू किया था बोलने से ना, कितना ठीक भी होना था। कभी कभी हम ये सोचते हैं। सो आई वुड से डोंट मेक द मिस्टेक दैट आई मेड। आई ट्राइड अ लॉट फिटिंग इन, आई ट्राइड टू बी इन ग्रुप्स दैट आई डिडंट बिलोंग। ज़बरदस्ती नहीं, हमको नॉर्मल आदमी जैसे होना है। नॉर्मल का डेफिनेशन एक फ्लाई के लिए और एक स्पाइडर के लिए इतना अलग होगा ना। व्हाट इज़ नॉर्मल फॉर अ स्पाइडर वेब्स, एक फ्लाई फंसेगा तो वो तो उसका नॉर्मल तो खत्म है। तो फ्लाई का नॉर्मल एक वेब में फंसने से वो मर गया। तो सो अगर आपका थोड़ा भी ये डर है कि आदमी लोग जज करेगा वगैरह, उसमें आई वुड से वर्क ऑन दैट। एंड इफ यू वांट टू परस्यू दिस, आई वुड डेफिनेटली आस्क यू टू परस्यू, बिकॉज दिस इज अ वेरी बूमिंग इंडस्ट्री राइट नाउ, द ओकल्ट इंडस्ट्री। और अगर आपको पढ़ना है बोलने से थेरो और न्यूमरोलॉजी, यू कैन रीच आउट टू मी। ओके, वी आर प्रोवाइडिंग द लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। यू कैन जस्ट चेक आउट हर इंस्टाग्राम, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस डालते हैं। एंड देयर इज ए कन्फेशन, जब हम इनिशियली जब आपका हम वीडियो देखा था ना, आई थॉट सी समवन फ्रॉम लाइक बाहर का है। हाँ, इंडियन तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नहीं सोचा है, उसके बाद अरुणाचली तो बिल्कुल भी नहीं सोचा है। बाद में हमको कोई बताया ये अरुणाचली है बोल के, आई वॉज वेरी सरप्राइज एंड थोड़ा प्राउड भी फील हो रहा था, ओ समवन इज डूइंग। क्योंकि अभी लाइक आई रियली लाइक टू अप्रिशिएट पीपल ना, जो
अलग वे में सोच के कुछ कर रहे हैं. Yeah, that is where actually I even said it to you. Like, you know, stay in this. It's very unique. I don't know anyone. I heard of another one talk show, but you also have your thing. And about that, it was very funny. जब मैं हम जो गायत्री मंत्र के बारे में बात किया था, कमेंट सेक्शन में पूरा झगड़ा हो गया था. ये नहीं होता कि ये तो अरे बाहर का आदमी लोग भी गायत्री मंत्र के बारे में बात करते हैं वाह बोल के. तो हम बोले ना हम अरुणाचल का है बोले तो पूरा नोटिसेंस लोग आ गया झगड़ा करने का. तुम लोग हम लोग को नहीं जानते हम लोग इंडियन है बोल के. तुम लोग कैसा नहीं जानते. वी आर फ्रॉम अरुणाचल. वी आर नॉट ईस्टर्न वाला. हम जैसा हो गया अभी तो कमेंट सेक्शन और नहीं देख देगा पूरा. वो लोग भी बोले ना वो लोग का भी बोलने का मतलब ये था कि अरे इंग्लिश अच्छे से बात कर रहे हैं और शकल देखने में इंडियन नहीं तो हम लोग का क्या गलती है के. बट या ओके वो रील्स को टेक करना पड़ेगा यहाँ पे. है वहाँ पे अभी भी होता होगा वो गायत्री मंत्र के बारे में. तो ओके दैट वाज द फर्स्ट रील दैट एक्चुअली मेड मी वायरल एक्चुअली. ओके सो रील्स में सबसे हाईएस्ट व्यूज कौन सा में? आई डोंट नो अबाउट दैट वन बट हम जो पिन किया हुआ है उसमें करियर के बारे में है. बट आई डिड अगेन फॉर करियर्स 2 मिलियन ऐसा कुछ व्यूज होगा. बट वो गायत्री मंत्र वाला भी हम और चेक नहीं किए पर उसमें कितना हो गया होगा. बहुत कंट्रोवर्शियल था जस्ट इन द सेंस ऑफ यू नो कहाँ से बिलोंग करते हैं कहाँ से है बोल के. फिर नीचे में अलग ही टॉपिक चल रहे वो कि लाइक अरुणाचल का हम लोग तुम लोग नहीं जानते इंडियन बोल के. सो इट फेल्ट नाइस टू रिप्रेजेंट अरुणाचल ना क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे अरुणाचल से कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट ऐसा कुछ कभी कुछ ओकल से निकला नहीं है ना. सो आई होप वन डे आई कुड बी द पर्सन जो अरुणाचल से आए लेजेंड इन मेकिंग होगा. अरुणाचल से आए और ये भी मतलब ये सब करता है बोल के और लाइक इन द दूर बात में ना तभी थोड़ा अरुणाचल का नाम थोड़ा फेमस करने में मजा होगा. तो बाहर में भी जाने देने के लिए ना अरुणाचल नाम को हम बहुत प्राउड से बताते हैं. हम तो मतलब एक ट्राइबल कम्युनिटी से है और हम दिखाता भी है ना हम लोग का ट्राइबल अटायर क्योंकि बाहर का आदमी लोग को इंटरेस्टिंग भी लगता है ये सब चीज़ ना. बाहर जाके हम बहुत अप्रिशिएशन मिले अपना कल्चर का सीरियसली. ओके जस्ट टेल दिस इज आउट ऑफ टॉपिक लेकिन कल्चर कितना इंपॉर्टेंट है? कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. हम ना एक्चुअली हमें आके मम्मी पापा को ये भी बोला है कि हमको दोनों लोग जैसे प्रे करते हमको सिखाओ क्योंकि दोनों लोग का जो प्रेयर्स हमको बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है ना एंड सो क्लोज टू नेचर ना. हम लोग का तो बेसिकली बोले मैं अर्थ मैजिक ही करते हैं ना हम लोग का दोनों लोग जो. तो ये भी ओकल प्रैक्टिसेस में आते हैं. तो इसको मतलब आई जस्ट फील लाइक ये ना नॉलेज चला जाएगा और कोई हम लोग का जनरेशन का लोग हम लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है ना. तो उसमें हमेशा मेरा वो है मतलब इसमें वो जाना है पर हमको कौन सिखाएगा ऐसा होता है कि फिर लैंग्वेज बैरियर भी तो हो गया तो ना. तो हमको मेरा तो ऑब्वियसली हम ओकल्ट में ज़्यादा है बट अदरवाइज छोटा मोटा ट्रेडिशन जो है हम लोग का पूजा कैसे करना है आई डू थिंक इट विल लिव ऑन. बट ये जो दोंदाई लोग है ना जैसे कि मेरा खानदान का भी जो जो बहुत खतरा वाला दोंदाई लोग है वो लोग मर रहे हैं ना. तो मेरा ग्रैंडफादर भी तो दोंदाई था तो वो नॉलेज वो लोग के साथ चला गया. तो हम ऐसा लॉस लगता है ना अरे हमको वो नॉलेज मिल गया. अरे वो नॉलेज कहीं से हमको मिल जाने से क्योंकि हम नहीं भी करते हैं से एटलीस्ट हम कुछ लिख के रख देगा ताकि इट कैन बी डॉक्यूमेंटेड ऐसा टाइप का नहीं होते क्या और पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. अगर नहीं भी करते हैं बोलने से जैसे कि वेदास हो गया मैन्युस्क्रिप्ट हो गया उपनिषद हो गया वो लोग इसलिए इफ यू वांट टू रीड इट्स देयर वो वाला जो थोड़ा ना होने से ठीक है. पर फिर हम बाहर में बैठते हैं तो फिर आता भी हमें क्या बोलते हैं 1 महीने ऐसा इस बार तो आया ना फिर हमको जैसे बताए स्कॉलरशिप का ऊपर में तो आई कांट जस्ट कम एंड जस्ट स्टे हियर फॉर अ व्हाइल ना. फिर आने से भी कोई ट्रांसलेट करने वाला भी चाहिए होगा तो उसमें सो आर यू प्लानिंग कुछ ऐसा करेगा आगे जाके? ये तो हाँ करने मन तो है बट आई डेफिनेटली थिंक लाइक अगर कोई भी हमें इंटरेस्टेड है प्लीज़ रीच आउट टू मी. आई वुड रियली लाइक टू डू दैट. बहुत मतलब पर्सनली ना ऐसा कोई दोंदाई का साथ. फिर दोंदाई लोग भी तो थोड़ा अपना कैरेक्टर होते तो क्या कर रहे हैं ऐसा बल्कि चला होगा फिर पकड़ के लेके आना पड़ेगा प्लीज बेटा हमको थोड़ा समझाओ क्या के लिए सीख रही है चौथा लड़की है वो लोग भी ऐसा सोचेगा. तो वो कई ऐसा आदमी भी पकड़ना पड़ेगा जो ये इंटरेस्टेड भी है और साथ में वो अच्छे से ना बता भी से क्योंकि कुछ डायलेक्ट है ना निशी में भी बहुत प्योर है तो हम लोग को भी समझ में तकलीफ हो जाता है. फिर हम लोग तो हॉस्टल में हम तो पूरा UKG से लेके पूरा 12th तक हॉस्टल में बैठे हैं ना. तो हम लोग का पेरेंट्स लोग का ये चीज़ हम बहुत हिपोक्रेटिक लगता है. अपना भाषा बात नहीं करते बोलते पर आप लोग हम लोग पूरा 1 साल पूरा बेच के रख देना चौथा से लेके बड़ा तक कहाँ से हम लोग सीखना था. आता घर सिर्फ 1 महीना के लिए था उसमें हम लोग तो वहाँ में स्कूल में था हम तो VKB में था हम लोग को बोलता था इंग्लिश में बात करो नहीं तो पनिशमेंट देगा टाइप का ना. तो आई थिंक व्हाट यू प्रैक्टिस इज व्हाट यू क्या बोलते हैं रिमेंबर ना एंड वी डिडंट प्रैक्टिस आवर डायलेक्ट और उसमें कहीं ना कहीं हम लोग का टच भी गायब हो गया. ट्रूली सैड ऐसे ही इसलिए लास्ट टाइम हम मेरा लास्ट सीजन में करता था ट्राइबल मीटर उसमें वही हम उसमें ट्राई करता था थोड़ा फन वे में थोड़ा सा मतलब अपना डायलेक्ट प्रैक्टिस कराएगा बट
अभी ये सीजन में उसको ऑप्ट नहीं किया, थोड़ा वो कर दिया. लेट्स सी आगे जाके थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकता है. विल ट्राई टू गेट बैक दैट सेगमेंट. लाइक क्वालिटी देते रहो अपना. लाइक उसमें थोड़ा हम लोग कुछ फ्रेज देता था उसको, निशी में बोलो, लाइक ट्रांसलेट करो गालों में, ऐसा ऐसा था, एक सेगमेंट था. that is cool. You should. थोड़ा उसमें ध्यान चला जाता है ना. अच्छा है. हम जब बाहर होते हैं हम बहुत मिस करते हैं निशी से बात करने, या तो वो क्या बोलते हैं अरुणाचली हिंदी ना, बहुत मिस करते हैं. हमें इंडियन तो हो जाता है पर किसी को कटा कटी वाला ग्रामर से बात करने बहुत मिस करते हैं हमें ना. इसलिए जब भी वो अरे अरुणाचल से क्या किससे नहीं होते क्या. और कभी कभी गुस्सा हो जाने से वहाँ का आदमी लोग को भी अरे हिंदी में निकल जाते हैं, बोले जो वो दीदी सही बोल रहे हैं, मुझे नथिंग कुछ नहीं हल्के. कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू आया. बहुत बहुत वैल्यू जो यहाँ में बैठ के नहीं होना था वही सेम चीज़ हो गया. खुद का यहाँ में बैठा कुछ नहीं लगना था, बाहर गया ना आया कल्चर बहुत बड़ा बात है बोल के पता चल गया. Okay, so I think it's time to wrap it up. So thank you, Thank you so Mete, much for having coming. So we have a hamper for you. Thank you for sharing your knowledge. ये है hamper. It's from Moody Monk. I saw the poster somewhere. नाहरलगुन में. It's behind that cinema hall. हाँ हम देखा था मोदी मंक दिस वे बोल के, लोगो बहुत इंटरेस्टिंग था. थैंक यू सो मच. It was really nice to be here. I Okay. enjoyed the conversation actually. Same. Okay. So चलो टाटा बाय बाय कर देते हैं. Okay. Do you want to sign off? Sign off करने मन है. हमको आइडिया नहीं कैसे साइन अप करते हैं. Okay, bye. Okay, bye bye. In a small talk with Coco.